Good evening, my friends. I'm so very happy to welcome each and every one of you. Many times people say that you are our channel partners. I don't think you're my partner, you're my family. So we welcome the Hiranandani family to come over here because that's the only way that we think that life should be there. I remember when we purchased Powai and we were making Powai, we were just thinking how Powai should be. Of course, we never dreamt it would be so good. But we took one decision in the beginning, and that is, I came from Malabar Hill. I was born in Malabar Hill. I was fortunate enough to be brought up over there. I have a house there. My schooling was South Mumbai. We had so many hospitals in the area. There was one thing in our mind, and that was when we make our project, that project should have a quality of life better than Malabar Hill where I was born. And that is the real objective, to extend the lovely things that we have in our lives to the entire family of people that we did. I made 11 buildings in Lokhandwala complex. And every time I finished the building, I was unhappy. Because when I looked out of the window, the road was bad, the access was bad, there were no proper street lights. There was nothing which made me happy for looking out of the window. Yes, when I looked inside the flat, I was extremely happy. But I couldn't stand in the balcony and say, oh, this is so beautiful a place that I have there, and that's where I'm going to live. Again, there was no great school in that area. You had to go all the way to Juhu in order to get a good school. Scary. It used to take 1 hour to go either to the station or to the nearest hospital that we did. So what happened is that the quality of life of a person, even in the newest complex and the best building that we created, was absolutely second rate, because you never got good quality water, there were no good roads, there was no access, nothing. So when we created Powai 27, 28 years ago, one of the objectives we said is that the quality of life should be the best in the world. We need to create a township which meets the quality standards of the best. Whether you go to Dubai, whether you go to Singapore, whether you go anywhere else, it doesn't matter what price you bought the flat. But the quality of life of the people who live there must be second. In Powai, we made 100 acres of gardens and forests, and within the complexes, we made 27 to 30 acres of gardens right in the beginning. We built the largest sewage recycling plant. We built one of the best schools in Mumbai, which got an award. We built then a hospital that we created over there. All in all, we created commercial complexes. So the place became beautiful. Today, Powai, what it is a quality complex which is good not for your family, but our family. So the most important thing of all is that when you come to the Hiranandani family, and which I promise you, you are a part of it, it's an extended family. Remember, blood is not necessary family. Huh? There are more fights among blood. But among family, extended family like yours, we are always going to be friends. The second thing which became very important is, what did we do about these townships? In Powai, we had a residential township in the beginning, and then we thought, should we make it into a commercial one also? Government told me you cannot make commercial. So we begged of them. Rules and regulations were changed in 1991. And we were permitted under the new DC rules in those days, those new DC rules at that time, to make commercial. And I was amongst the few who set up the newer buildings to do, and we got the best customers in the world. The Colgate Corporate Head Office, Chemtex Petroleum International Complex, the Colgate Corporate Offices. So we created a complex which was not just the good buildings. Good buildings, anybody can make. Lots of people can make. But it's the quality of life that we wanted to create for the people living here,
so that when they go into the garden, the children can play. When they go to the school, they go to the best school. If they are sick, they go to the best hospital. All that combination of events needed to be done. Second, we thought safety factor. When you have a commercial cum residential complex, the advantage is the place is busy. We have 23 fine restaurants in Powai because they are busy 24/7. Because you have the call centers operating at night, they want breakfast in the morning. We have lunches in the afternoons with all the commercial people, and in the evening, the residential complexes take over. So when we created Powai as a complex, complete residential and commercial, we created the largest at that time, the best commercial mixed-use township in India, creating quality of life, and built it. Of course, the problem became that the prices went up. And I want to share the story which has happened to me just 2 months ago. There's a building called Lake Castle, which I sold in Powai in 1991. And I sold it with great difficulty at 1,000 rupees a foot. 1,000 रुपया फुट में मैंने लेक कासल बहुत मुश्किल से बेचा. मेरे एक कोई दोस्त अभी आए, उन्होंने कहा मुझे रीसेल फ्लैट खरीदना है लेक कासल और ये फलाना आदमी बेचना चाहते हैं पता नहीं कौन से फ्लोर पर. उस जमाने में मैं सब कस्टमर से मिलता रहता था, इसलिए मुझे वो आदमी याद आया कि वो आदमी है. मैंने कहा उसका नंबर है क्या? तो बोला हाँ है मेरे पास. तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया नंबर और मैंने उनको फ़ोन किया. मैं बोला मैं निरंजन हीरानंदानी हूँ, आप मुझे याद है? तो बोला हाँ साहब, आप इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बात हुई है फ़ोन पर, बताइए साहब मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने कहा मेरे एक दोस्त है, वो आपसे ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं और वो 30,000 रुपया फुट वो आपको देना चाहते हैं. तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा भाव है और वो खुश हो जाएगा मुझे उनको बेचने के लिए और मैं उनको कस्टमर दे रहा हूँ. तो उन्होंने थोड़ा दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा सॉरी सर, मैं तो 34,000 रुपया फुट में बेचना चाहता हूँ ये फ्लैट, लेकिन आपने फ़ोन किया है इसलिए मैं 33,000 रुपये में देने को तैयार हो गया हूँ. ये दाखला 2-3 महीने पहले की बात है. इसलिए जब हमने 1,000 रुपये फुट में बनाया था ये मकान, उसकी क्वालिटी ऐसी बनाई है कि जब वो 30,000 या 34,000 में भी बिकती है तो उनको किसको हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मैं 34,000 दे रहा हूँ और ये मैं फ्लैट यहाँ खरीद नहीं सकता हूँ. क्योंकि इसकी जो क्वालिटी रहती है वो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, वाटर प्रूफिंग ये वगैरह वगैरह क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग. तो इसलिए जो होलिस्टिक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने बनाई, उसका जो फ़ायदा हुआ है वो उस ज़माने में लेक कासल में हमारे कंपनी को ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रॉफिट, ब्याज गिनो उस समय 2% ब्याज में देता था, अभी नहीं देता, तो उस ज़माने में देता था. तो 2% ब्याज सालाना नहीं है, महीने की बात कर, तो उस समय देता था. इसलिए हमने कुछ प्रॉफिट वहाँ मकान में किया ही नहीं. लेकिन जो हमारे कस्टमर किराएदार जिसने ख़रीदा, उनको आज 33 गुना भाव मिल रहा है या 30 गुना भाव तो मेरे दोस्त ने उनको ऑफ़र किया था. हम क्या कहना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के हैं वो इतने क्वालिटी और डायरेक्शंस हम करते गए हैं. फिर बात हुई कि निरंजन ने एक दाव लगाया, पवाई स्टार्ट किया और मुनाफा कमाया. उनको पता नहीं है कि हमने काफ़ी बिल्डिंग में कमाया नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि ये दाव खेला और बहुत बड़े फ़ायदा हो गया, ये दोबारा नहीं हो सकता. तो हमने एक चैलेंज ले ली और थाना में गए. पवाई 250 एकड़ की है, थाना सिर्फ 350 एकड़ की ज़मीन है. तो हम वहाँ ले लिया. वहाँ की जो दृष्टि थी वो बहुत कठोर थी. वहाँ घोड़बंदर रोड 2 लेन का था, वहाँ एक नाला था जहाँ हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, और वहाँ पहुँचने वो पूरे रोड के ऊपर 3 बिल्डर थे.
वो भी हर बिल्डर कोई 50,000 फुट से ज़्यादा कभी बनाया नहीं होगा। तो उतने हम 3 बिल्डर वहाँ काम करते थे, तभी हमने शुरुआत की वहाँ। आज के तारीख में 42 बिल्डर है, 14 लेन रोड है, एक मल्टी ट्रांसपोर्ट वहाँ आने वाली है मेट्रो के हिसाब से, हर एक जंक्शन में फ्लाईओवर हो गया है, हमारे पास वहाँ 3 स्कूल अभी स्टार्ट हो गए हैं, और हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर में इनैग्यूरेट, बड़े हॉस्पिटल है, आज हॉस्पिटल है लेकिन इनैग्यूरेट हो जाएगा। जो हमने वन हीरानंदानी पार्क बनाया उसके पीछे, सिर्फ वो प्रोजेक्ट के पीछे 20 एकड़ के गार्डन हम बना रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लास्ट वीक हमें वो हैंडओवर किया, तो उसकी जो प्रगति डेवलपमेंट होगी वो मेरे अंदाज से फ्यूचर में शायद पवई को टक्कर नहीं, उसके आगे भी जा सकता है, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात ये रही कि हम जो मिक्स्ड यूज टाउनशिप का माहौल बनाया था पवई में, वो थाना में नहीं बना सके बिगिनिंग में, क्योंकि वहाँ कमर्शियल कोई करने नहीं चाहते थे। तो हमने छोटे छोटे कर दिए, और अल्टीमेटली बायर का कॉरपोरेट हेड ऑफिस भी वहाँ शिफ्ट हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स में। और आज की तारीख में हमें गर्व होता है कि ये वहाँ हमारे पास इंडिया के सबसे बड़ी आईटी डील हमने कंप्लीट किया है। 20 लाख फुट में 27,000 लोग काम करेंगे, और 1.5 साल के अंदर हम वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं। ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि हमने पवई में 15 साल में 50 लाख फुट कमर्शियल बनाया, थाना में 2 साल के अंदर 20 लाख फुट बनाएंगे, और शायद अगले महीने में हम 10 लाख फुट का और डील करने जा रहे हैं। तो 30 लाख फुट हम जहां 50 लाख फुट 15 साल में किया, वो 1.5 साल के अंदर हम 30 लाख फुट बनाने जा रहे हैं थाना एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसलिए जो तरक्की आगे है, हम जो दृष्टि देख रहे हैं, आपके साथ हम जो काम करना चाहते हैं कि आगे का जो दृष्टि है, आगे का जो 5 साल है, आपने जो 15 साल, बहुत लोग हैं हमारे साथ ऑलरेडी 15 साल से काम कर रहे हैं, थाना में की बात कर रहा हूँ। वहाँ थाना के अंदर अगले 5 साल के अंदर जो प्रगति और तरक्की होने वाली है, वो शायद 15-20 साल में नहीं हुआ। इसलिए जो आगे पॉजिटिव रोल हम देख रहे हैं थाना के लिए, वो शायद पवई से आगे है, और थाना अंदर भी हम देखते हैं कि उसकी भी प्रगति ज़्यादा आगे हो रही है। तो इसलिए हम जो आप फैमिली मेंबर्स हम बात कर रहे हैं आज के तारीख में, वो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ उसी हिसाब से हम बिल्डिंग शुरुआत कर दे रहे हैं। इस साल में हम और भी बिल्डिंग, जितने हम बिल्डिंग कभी कोई भी साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा इस साल में हम स्क्वायर फुट में स्टार्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल की। तो एक तरफ से हम कमर्शियल कर रहे हैं, दूसरे तरफ से रेजिडेंशियल कर रहे हैं, तीसरी तरफ से हॉस्पिटल हो रहा है, और वहाँ 2 और स्कूल शुरुआत हो जाएंगे 1 के 2 साल के अंदर, अलग किस्म के, अलग अलग स्कूल, अलग अलग टैरिफ के। तो हम समझते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे पास 2 प्रोजेक्ट वहाँ हैं। एक तो द वॉक है, जहाँ हम कमर्शियल और शॉपिंग करने जा रहे हैं। वहाँ हम समझते हैं कि शायद जो दृष्टिकोण हमने पवई में की थी, उससे कुछ ज़्यादा ये वॉक में हो जाएगा। तो इसलिए जो कमर्शियल रिटेल का है, वहाँ हम और भी बढ़ोतरी देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इसमें आप भी भाग लें, और आप भी डिस्कस कर लें, आपके जो कस्टमर्स हैं, कि हमारा ये कमिटमेंट है कि थाना को एक नए पोजीशन पर हम लाना चाहते हैं, जो अब तक मैंने कभी लाइफ में किया ही नहीं है। तो इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और ये मैं समझता हूँ उसमें आप जितना भी भाग लेंगे उतना कम है। तो ये रही थाना की बात, ये रही हीरानंदानी एस्टेट, 1 हीरानंदानी पार्क और द पॉक के बारे में। लेकिन आपको पता है ना, मैं सिर्फ 66 इयर्स का बन गया हूँ। आई एम ऑलरेडी 66 years old. So I said, now what is to be done?
I have only 30 years to go because my father died at the age of 96, so that's my ambition. So we said we must do something more. तो हमारे पास जो फाइनेंस हमारे डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ प्रकाश शाह, उन्होंने कहा इससे भी कुछ बड़ा काम कर लो। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम पनवेल में सिर्फ 580 एकड़ ज़मीन खरीदी है, 350 एकड़ थाने में है, लेकिन ये हम और भी उससे आगे जाना चाहते हैं। पनवेल का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाली है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ट्रांस हार्बर ब्रिज बनने वाली है, इसलिए अच्छा है क्योंकि रेलवे स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट के सामने आने वाली है 1.5 साल के अंदर। जैसे प्रभु साहब ने अभी अनाउंस किया, सुरेश प्रभु ने अनाउंस किया, ऑलरेडी रेलवे लाइन बन गई है, खाली एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम पनवेल हमारे साइड तक आ जाएगी। ऑलरेडी गुड्स ट्रेन चालू जाहिर है और ये होने वाली है। ऑलरेडी हर जंक्शन सायन पनवेल एक्सप्रेसवे का कंप्लीट हो गया है, इसलिए आप सायन से पनवेल चले जाएंगे तो एक भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। जैसे थाना में हमको 20 साल लगा ये करने में, यहाँ हम 1.5 साल के अंदर पूरी डिस्टेंस में एक भी सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो आप सायन से पनवेल चले जाएंगे तो 0 ट्रैफिक सिग्नल, नो जंक्शन, हर एक जंक्शन के ऊपर फ्लाईओवर ऑलरेडी आ गई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ हम क्या सोच रहे हैं, वहाँ हम सिर्फ सोच रहे हैं कि इस साल हम 1500 फ्लैट तैयार करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम 1500 फ्लैट डिलीवर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि और 1500 फ्लैट हम इस साल स्टार्ट करेंगे, जो 3 साल के अंदर हम डिलीवर करना चाहते हैं, 2.5 साल 3 साल के अंदर वो भी फ्लैट हम तैयार करना चाहते हैं। और जो हम इस साल में थाना में किया 20 लाख फुट का कंस्ट्रक्शन कमर्शियल, वो 20 लाख फुट का फर्स्ट स्टेज में, यहाँ हमने 15 साल बाद में हमने किया, थाना में 10 साल के बाद कमर्शियल किया। हम पनवेल में इस साल में 20 लाख फुट कंप्लीट करके डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ 20 लाख फुट कमर्शियल पनवेल में 2016 में हम डिलीवर करेंगे, बेचेंगे बाद में, किराए पर देंगे बाद में, पर हम तैयार करके वो दे देंगे। उसमें एक हमारे दोस्त ने मुझे कहा आपका पनवेल बहुत ही अच्छा लगता है, हम आगे 1 साल के अंदर हम खरीदेंगे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस अब तक नहीं आ रही है कि मैं पनवेल में करूं। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अगले साल में खरीदेंगे, लेकिन खाली एक इसमें खामी रह जाएगी कि इस भाव में जो आप खरीदते हैं इस साल, नेक्स्ट ईयर आप सिर्फ 20-25% ज़्यादा पैसे देंगे, यही बात रहेगी। इसलिए आप आज खरीदना ही है तो इस साल खरीदो, नेक्स्ट ईयर खरीदोगे तो ज़रूर आप खरीदो, क्योंकि मुझसे आप खरीदना चाहते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप खरीदेंगे तो 25% आपको ज़्यादा भाव देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हम अनाउंस किया है। इसलिए जो भाव में अभी हम दे रहे हैं उससे कुछ बढ़ोतरी होने वाली है और ये फ्यूचर है। तो वहाँ तो हॉस्पिटल ऑलरेडी है और उसका हॉस्पिटल का नाम है धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, हमारे कॉम्प्लेक्स से लगभग 2 मिनट्स डिस्टेंस पर, और उनकी पूरी फैसिलिटी अभी ऑलरेडी हमको दे दिया है। हम वहाँ स्कूल का भी प्लानिंग कर रहे हैं, कमर्शियल तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, रिटेल हम करना चाहते हैं, वो भी हम शुरुआत अभी कर रहे हैं। तो इस साल के अंदर, 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से हम डिलीवरी करना चाहते हैं और 1500 फ्लैट्स डिलीवर करेंगे 1 साल के अंदर। 20 लाख फुट का कमर्शियल रेडी होके डिलीवर हो जाएगा 1 साल के अंदर। ये रफ्तार पर निरंजन हिरानंदानी ने कोई भी प्रोजेक्ट लास्ट 30 साल के अंदर नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको फैमिली मेम्बर होते हुए कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले जो मैं करता था वो देखता था, यहाँ बिका के नहीं फिर मैं बनाऊँगा, यहाँ बिका के क्या नहीं बनाऊँगा। लेकिन अभी इतना भरोसा हो गया है आप पर और मुझ पर, खुद पर और जो हमारी टीम है उन पर, कि हमने इस रफ्तार से ये प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि दिस फ्यूचर इज समथिंग विच आई एम श्योर अबाउट, because that is the location which is going to be my next Powai,
which is going to be my next Thane, and which is going to be Panvel. So it will become as popular as any other Hiranandani project we have done. I'm sharing this not with anybody else, but my family. Because जहाँ भी हम जाते हैं, हम फैमिली मेम्बर्स के साथ पहले हम बात करना चाहते हैं. जब तक हम पूरे पब्लिक को तो बताएंगे क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह होता है, लेकिन जो हमारे साथ शरीक है, जो हमारे साथ इतने साल काम किए हैं, हमने यही कहा कि उनके साथ पहले हमको जुड़ना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द फैमिली विच हैज़ रिमेन्ड विथ अस राइट फ्रॉम डे वन. वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर विथ अस. Thank you for coming over here and sharing this evening with you. I want to only tell you that I love you all. I'm actually in love with all of you. You people are the backbone of my industry. You people are the backbone of what we are doing. We want you to communicate our feelings about the whole thing. धंधा तो होता ही रहेगा, लेकिन प्रेम भाव से और अच्छे तरीके से हम करें कि जो हमने पहले किया था in terms of commitment, जो हम आगे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कमिटमेंट हमने पहले किया है 30-35 साल से, वो आगे भी हम आपके साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, हमारे सप्लायर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ और हमारे ये पूरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ ईश्वर करे हमें ताकत दे कि जो कमिटमेंट हम करें उससे हम आगे जाएं. वो तरीके के लिए आप और हम दोनों जुड़ना चाहते हैं. We want to work together to see that what we want to deliver and produce, that we will make the next generation happy. When they come to stay in your place, I don't want anybody to thank me, but I want people to be happy. If I can get more and more people happy in this family partnership, then when I go away from this earth, I can say, thank you, God, for giving me this chance to be working in a happy manner with every customer who has bought my flat, with every supplier who gives me material, with my family partners who are here today. Thank you very much for coming. Thank you for listening. Let us have a great life and enjoy not today, but every day. I wish you well for your family, your good health and happiness, so that the business will continue. We will, of course, do business. Business is only a part of life. But if we can love each other, if we can be happy together, if we can create this happiness for each person whom we deal with, I promise you, we will not be worried about the end of life. Because every day for me is a happy day. Because when I share all the goodness of life to you, then it makes me very happy. So thank you, each one of you, from the bottom of my heart, that you have come over here. I really enjoying it. I'm very happy to talk to each one of you, and give me strength, give me prayers from each one of you that I'm able to honor all the commitments that we are giving to you today, and that every member of my people will be of service to you, not today, not tomorrow, but forever. Thank you very much.